Hello, good morning. Good morning, sir. Good morning, Hello. sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. हाँ, तो यहाँ देखिए बात, कल हमने आपको 8.2 का पहला क्वेश्चन हमने बता दिया था, क्योंकि इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो लगभग हमने सारे क्वेश्चंस आपको बताने की कोशिश यहाँ मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बी सी डी इज ए रम्बस and PQ, R and S are the midpoints of the side AB, BC, CD and AD respectively, so that the quadrilateral PQRS is a rectangle. तो सबसे पहले हमें एक रॉम्बस बनाना होगा। रॉम्बस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि रॉम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ABCD इज रॉम्बस, PQR एंड S are the midpoints of side AB, BC, CD and AD respectively. देखिए P, Q, R and S. These are the points. They are midpoints of side AB, BC, CD and AD respectively. Now we have joined the diagonals AC and BD. You know about this. The diagonals of rhombus bisect each other at right angle. It means they intersect at 90 degree. So AC and BD are the diagonals of rhombus ABCD. They bisect each other at right angle at O. इसका मतलब है AOB कितना होगा? एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम जैसे पहले प्रूव करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करते हुए कि ABC एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में P और Q मिड पॉइंट हैं AB और BC साइड के, तो हम मिड पॉइंट थ्योरम ABC ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC P and Q are the midpoints of side AB and BC respectively. So by midpoint theorem क्या हो जाएगा? PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. This is midpoint theorem. And if one side you have find PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. Again in triangle ADC, S and R are the midpoints of side AD and DC. Therefore, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. So see here, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. This is by midpoint theorem again. Here you see PQ is parallel to AC and SR parallel to AC. If two lines are parallel to the same line, it means they are also parallel. Therefore, PQ is parallel to SR. And PQ is equal to half of AC, SR is equal to half of AC, it means PQ is equal to SR. And when PQ is parallel to SR, PQ is equal to SR, आप किसी क्वालिटल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम. Here you write the definition. See here, in at Ibristus we have write the region. So as the same way you try to write all the regions, because in geometry if you write the region of every steps, it means you are clear about that step. And if you know the region, it means you know the condition, how you write this statement, because every steps you can write with the help of any region. So here in geometry you also include this one, how we write and what it about its region. Just you see here, PQ is parallel to SR, PQ is equal to SR. Now quadrilateral PQRS is a parallelogram. Why? Because this is a condition. Theorem 8.8. In a quadrilateral, if one pair of opposite sides are parallel and equal, then it is a parallelogram. So don't try to write the theorem 8.8. Most probably you have practiced to write the whole statement, because when you write the whole statements, you recall again and again, and
you recite the statements easily. Where you apply, you know about this. How you write this one, you know about this. And what the reason behind this, also you know by writing this such type of statement. So everything should be clear when you apply this one. So if you want to understand the question in geometry, it means every step should be clear and you know the reason of every steps. So here, because this is a basic concept, we have applied these steps in every questions. This, and this. And this is a parallelogram. Up to this step, we have applied all whatever is given the question in this exercise, because totally it is based on midpoint theorem, so we can apply here in the same way, and these steps are common in every questions. So up to this step it should be clear to all. See here, PQRS is a parallelogram. Now in figure, if we see the figure, see here, PQRS is a parallelogram, and we want to prove PQRS is a rectangle. How it is a rectangle? A parallelogram is a rectangle. What the condition about this? If one angle of parallelogram is a right angle, then parallelogram is a rectangle. So we have proved the parallelogram. So we have proved the one angle, either P or Q or R or S. Any one of the angle we have proved the 90 degree. So here we have taken the side C here, figure. Then I'll show the steps, but here first you understand it from figure how we write this one. See, PQ is parallel to AC. Now PM is also parallel to LO, because M lies on PQ and L and O also lies on AC. तो अगर PQ AC के पैरेलल है तो PM भी LO के पैरेलल होगा. In the same way, P and S are the midpoints of triangle ABD. तो PS is parallel to DB. इसका मतलब है कि LP is also parallel to OM. You understand? PS is parallel to DB. Now L lies on PS. So this part of LP is also parallel to OM, because O and M also lies on DB. So see here, PM is parallel to OL and LP is parallel to OM. It means this is a parallelogram, because inequality both pair of opposite sides are parallel, then it is a parallelogram. PMOL is a parallelogram. And you know the property of parallelogram, opposite angles are equal. Now LOM is equal to angle LPM. So this angle is 90 degree. Is it clear? And if it is 90 degree, now PQRS parallelogram becomes a rectangle, because its one angle is 90 degree. It means all angles are equal to 90 degree. Apply the property of parallelogram. This angle equal to opposite angles are equal, तो ये भी 90 हो जाएगा. Adjacent angle, because both lines are parallel, so this plus this equal to 180. Now this angle is 90 degree. Same way here, 90 degree. So these are the steps. If you know the steps, if you know the condition, then easily you can find the. See here, what the steps we have taken. PQRS is a parallelogram. To this step you know, and here in triangle ABD, PS is parallel to DB by midpoint theorem, because S and B are the midpoints of side AB and AD. तो यहाँ से यह आ जाएगा. PL is parallel to M, हमने अभी आपको फिगर में बताया. PQ parallel to AC, therefore PM parallel to OL. ये हो गया पैरेललोग्राम. क्यों? अब बेसिक डेफिनेशन जो
पैरेललोग्राम की क्या है, बाकी सब प्रॉपर्टी हैं। यहां पर ये थ्योरम जो है, इनइक्वालिटरल इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ये बेसिक डेफिनेशन है पैरेललोग्राम की, कि अगर कोई भी क्वालिटरल दिया है, उसकी दोनों पेयर अपोजिट साइड्स जो हैं पैरेलल होंगी, तो क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। और इसके आधार पे यहां पर क्या होगा, MPL इज इक्वल टू MOL। MPL किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। तो फिगर में आप देख लीजिए, MPL और MOL, सीयर MPL और MOL, ये दोनों क्या होंगे, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हैं, तो इक्वल हो जाएंगे। तो ये 90 है, ये भी कितना हो जाएगा, 90। तो यहां पर MOLP पैरेललोग्राम हमने प्रूव करके इसके अपोजिट एंगल क्या किए, हमने इक्वल कर दिए। और अगर ये इक्वल कर दिया तो यहां से देखिए, देयरफॉर पैरेललोग्राम PQRS इज ए रेक्टेंगल। क्यों है, क्योंकि यहां फिर रीजन हमने लिख दिया, इफ एनी वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल टू 90 डिग्री देन द पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। तो at every steps we have write here all the regions, whatever the regions used to write this statement. So like this, if you have applied to solve any geometrical question or geometry question, so if you know the steps, region, it means you can solve easily and you understand well. Either you change the name, either change the pattern, but reason behind this, what the reason you have taken, everything should be clear. Come to the third question. सेम क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा चेंज कर दिया गया। यहाँ पर रॉम्बस दिया गया था, रेक्टेंगल आपको प्रूव करना था, वहां रेक्टेंगल दिया गया, आपको रॉम्बस प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल में क्या करना है आपको, यहाँ देखिए, अगर ABCD एक रेक्टेंगल दिया गया है, PQRS उसके मिड पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इसमें ये कह रहा है कि ये जो PQRS होगा, ये क्या होगा, रॉम्बस होगा। तो अब आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए और रॉम्बस की भी। डेफिनीशन हर एक की क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। अब रेक्टेंगल है तो ABCD अगर रेक्टेंगल है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, और हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहां देखिए, सबसे पहले वो बेसिक मिड पॉइंट थ्योरम वाला कंडीशन, ABC ट्रायंगल बन गया, P और Q मिड पॉइंट है, तो PQ इज पैरेलल टू AC, PQ इज इक्वल टू हाफ हाफ AC। ऐसे ADC दूसरा ट्रायंगल बन गया, S और R दोनों मिड पॉइंट्स हैं, तो SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ हाफ AC। तो ये जो पार्ट है ये बिल्कुल कॉमन है, हर एक क्वेश्चन में यहां तक तो यूज करेंगे ही करेंगे। अब इन दोनों से क्या आ जाता है, PQ इज पैरेलल टू SR एंड PQ इज इक्वल टू SR। तो अगर किसी भी क्वालिटर में वन पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल हैं, तो क्या होता है, पैरेललोग्राम। ये थ्योरम 8.8 है आपका, तो उसके आधार पे बार बार लिखा जा रहा है। तो PQRS इज ए पैरेललोग्राम, यहां तक प्रूव होगा। अब हमें प्रूव क्या करना है, पैरेललोग्राम। अब आपको ये देखना है कि पैरेललोग्राम रॉम्बस कब होगा। रॉम्बस तभी होगा जब इसकी एडजेसेंट साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी PS और PQ अगर इक्वल प्रूव कर दें तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम में PQ SR के इक्वल होता है, SP RQ के इक्वल हो, तो चारों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहां से सबसे पहले हम ट्रायंगल SAP, ये दो ट्रायंगल है, देखिए SAP एंड QBP या PBQ। तो अब ये एंगल A और एंगल B क्या है, 90 डिग्री है। AS इज इक्वल टू BQ क्यों है, क्योंकि AD इज इक्वल टू BC है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। हाफ ऑफ AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो हाफ ऑफ AD S इसका मिड पॉइंट है, यहाँ Q इसका मिड पॉइंट है, तो AS इज इक्वल टू BQ के। ये पहली रीजन हो गई, ये आपको मालूम है। अब यहां देखिए, फिर P क्या है, इस AB का मिड पॉइंट है,
AP इज इक्वल टू BP हो जाएगा। और जब ये AP इज इक्वल टू BP हो जाएगा तो इसमें आप देखिए फिर से हमने दोबारा ये फिगर बना ली थी, अगले पेज पर चूंकि किया है, तो यहां पर आपको दिख रहा है AP इज इक्वल टू BP, AS इज इक्वल टू BQ। अब और क्या चाहिए, एक एंगल चाहिए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि रेक्टेंगल के एंगल हैं ये 90 डिग्री होते हैं, तो यहां पर SAP इज इक्वल टू QBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब आपको क्या मिल गया, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, और ये AP किसके इक्वल हो गया, BP के। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्वेंट हो गए। कॉन्वेंट होने के बाद क्या होगा, SP इज इक्वल टू PQ हमें मिल गया। ये किससे आया, CPCT से। तो अगर SP इज इक्वल टू PQ आ गया तो यही पैरेललोग्राम PQRS क्या हो गया, ये रॉम्बस हो गया, क्योंकि SP पैरेललोग्राम में क्या होता है, RQ के इक्वल होता है, और PQ SR के इक्वल होता है। पैरेललोग्राम में डेफिनेशन क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, और यहां पर SP PQ के एडसेंट साइड भी इक्वल हो गई, जिसका मतलब चारों साइड एक दूसरे की इक्वल हो गई, और अगर चारों साइड इक्वल हो गई और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर इट इज ए रॉम्बस। ये इसकी डेफिनेशन में यहां पर बिकम्स अ रॉम्बस, बिकॉज इन ए पैरेलल इफ वन पेयर ऑफ एडसेंट साइड्स आर इक्वल, देन PQ is equal to SR is equal to RQ is equal to SR, it is a rhombus। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। अब फोर्थ क्वेश्चन हमने छोड़ दिया। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सेम पैटर्न पे है। ट्रेपेजियम के अपोजिट साइड्स पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, एक लाइन ड्रा की गई है, उसको आप लेकर के दो ट्रायंगल बन रहे हैं और दोनों में अलग अलग आप प्रूव कर लेंगे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। 5 में आपके जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का पहले स्टेटमेंट देख लीजिए। कह रहा है इन ए पैरेललोग्राम ABCD E and F are the midpoints of side AB and CD respectively, so that the line segment AF and EC trisect the diagonal ED। वर्डिंग आप देखिए, so that the line segment AF and EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। इसका मतलब है कि ये तीन इक्वल पार्ट्स में डायगोनल को डिवाइड करते हैं। आपको प्रूव करना है कि हर एक पार्ट क्या होगा, 1/3 होगा पूरे डायगोनल का, या तीनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ट्राइसेक्ट का मतलब ऑल आर 1/3 ऑफ दिस DB। समझ में आई बात। तो फिगर में दिख रहा है आपको ABCD E and F are the midpoints of side AB and CD। समझ में आ रही बात सभी को? हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। सबको समझ में आ रहा है या ऐसे खाली? यस सर। हाँ, तो आपको जो नहीं आया उसे पूछते भी रहें, अगर कोई दिक्कत है तो बताते रहें। चलिए देखिए, ABCD एक पैरेललोग्राम दिया गया है। E and F are the midpoints of side AB and CD। यहां पर आप, और ये क्या करते हैं, डायगोनल BD को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये डायगोनल BD को Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आपको जो प्रूव करना है क्या करना है, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB एंड ईच वन इक्वल टू 1/3 ऑफ DB। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, E और F मिड पॉइंट्स हैं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले पैरेललोग्राम है तो AB इज इक्वल टू किसके होगा, CD के, और AB पैरेलल टू किसके होगा, CD के। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू किसके होगा, हाफ ऑफ CD के। तो हाफ ऑफ AB मीन्स क्या हुआ, A, क्योंकि E इसका मिड पॉइंट है, तो हाफ ऑफ AB क्या हो गया, A हो गया। हाफ ऑफ CD CF हो गया।
तो A is equal to CF because E and F are the midpoints of AB and CD। देखिए हम कहीं पर भी आप ये देख लीजिए कि जितने स्टेप लिख रहे हैं सारे रीजन हमने हर जगह लिखे। हमने कहीं शॉर्ट कट नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे ही आपको लिखना है, तभी आप इसको समझ पाएंगे और तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन कर पाएंगे। और जिसको ये रीजन सारे स्टेप के क्लियर होंगे उसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता ज्योमेट्री में। और जिसको रीजन नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदाजा लगाएगा, और अंदाजा लगाने पर आप जानते हैं बहस में कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए सबसे जरूरी बात है कि हर लाइन का रीजन हमें समझ में आता रहे। अब यहां देखिए फिर वही कंडीशन आएगी, AE CF के इक्वल है, AE CF के पैरेलल है, क्योंकि AB CD के पैरेलल है तो AE भी CF के पैरेलल होगा। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, दैट इज ए पैरेललोग्राम। तो AECF ये जो फिगर बन रही है ये क्या होगी? AECF ये होगा पैरेललोग्राम हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम है इसका अंदर C भी क्या होगा? AF के पैरेलल हो जाएगा। और अगर C AF के पैरेलल तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? EQ पैरेलल टू AP एंड PF पैरेलल टू CQ। ये भी दो पार्ट में उसी सेम लाइन के पार्ट हैं तो दोनों आपस में भी पैरेलल होंगे। अगर ये EC पूरी लाइन AF के पैरेलल है तो EC का इतना पार्ट AF के इतने पार्ट के भी पैरेलल होगा, और AF का इतना पार्ट इसके इस पार्ट के पैरेलल होगा। तो इसी दोनों चीजों को अप्लाई किया गया है। पैरेललोग्राम के बाद यहां लिखा गया है AF इज पैरेलल टू C। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब है EQ पैरेलल होगा AP के एंड PF पैरेलल टू QC। P and Q लाइज ऑन AF एंड EC रिस्पेक्टिवली। अब देखिए ये मिलने के बाद हमें क्या दिख रहा है? हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल दिख रहा है ABP, इसमें EQ क्या है? AP के पैरेलल है। E क्या है? इस ट्रायंगल की एक साइड का मिड पॉइंट दिया गया है। तो अब इसमें क्या लगेगा? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कि जिसमें कहा गया है इफ ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एनी वन साइड पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, या आप डायरेक्ट यहां लिख भी सकते हैं। जैसे आप मिड पॉइंट थ्योरम हम बार बार लिख रहे हैं, आप एक दो क्वेश्चन में मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिए, आपको याद रहेगा। तो यहां पर EQ इज पैरेलल टू AP एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो इस ABP ट्रायंगल में क्या होगा? EQ बाइसेक्ट PB। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में, तो BQ इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? PQ के। यहां देखिए E is the midpoint of AB and EQ is parallel to AP, therefore EQ bisect BP by converse of midpoint theorem। तो converse of midpoint theorem तो हमने यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आपको याद होना चाहिए स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट लिख लें तो और भी याद अच्छे से रहेगा कि हमने कौन सी कंडीशन लगाई। तो स्टेटमेंट यही है कि इन ए ट्रायंगल इफ ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एनी वन साइड पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी थर्ड साइड कौन सी हुई? PB को ये बाइसेक्ट करेगी। तो अगर बाइसेक्ट करेगी इसका मतलब क्या हुआ? BQ इज इक्वल टू PQ, ये आ गया। अब यहां से दूसरा जो ट्रायंगल है DQC, DQC देखिए कहां पर दिख रहा है? ये वाला DQC। इसमें अभी हमने क्या बताया था? PF पैरेलल टू QC और F इसका मिड पॉइंट है। तो सेम रीजन FP बाइसेक्ट DQ, क्योंकि हम DQC ट्रायंगल में देख रहे हैं तो F क्या होगा? इस DC साइड का मिड पॉइंट हो गया, और DP पैरेलल है CQ के, तो FP पैरेलल है CQ के, तो FP बाइसेक्ट DQ एट P। इसका मतलब क्या हुआ? DP इज इक्वल टू PQ। और इस वाले ट्रायंगल में क्या आया था? PQ इज इक्वल टू QB। तो
इन दोनों कंडीशन को एक साथ देखिए। F is the midpoint of DC, FP parallel to QC, FP bisect DQ such that DP is equal to PQ। अब यहाँ BP is equal to PQ आया, यहाँ DP is equal to PQ है, इसका मतलब दोनों से क्या आ जाएगा, ये तीनों पार्ट जो हैं इक्वल हो गए। PQ BQ के इक्वल हो गया और PQ DP के इक्वल हो गया, इसका DP is equal to PQ is equal to QB। अब इस डायगोनल डीबी को हम क्या लिख सकते हैं, इन तीनों पार्ट का सम लिख सकते हैं। यहां देखिए जो डीबी फिगर बन रही है, डीबी क्या होगी, डीपी प्लस पीक्यू प्लस क्यूबी, इन तीनों का सम हो जाएगी। तो अगर तीनों का सम है और तीनों इक्वल हैं तो हम चाहे 3 टाइम्स ऑफ डीपी लिख सकते हैं, चाहे 3 टाइम्स ऑफ पीक्यू लिख सकते हैं, चाहे 3 टाइम्स ऑफ बीक्यू लिख सकते हैं, क्योंकि डीपी प्लस पीक्यू प्लस क्यूबी, तो डीपी प्लस डीपी, क्योंकि तीनों इक्वल है, तीनों जगह डीपी रख दिया, तो 3 टाइम्स ऑफ डीपी इज इक्वल टू क्या आएगा, डीबी आएगा। तो यहां से डीपी इज इक्वल टू पीक्यू, तीनों साइड का सम हो गया, और 3 टाइम्स ऑफ डीपी इज इक्वल टू डीबी, डीपी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ डीबी। तो अगर डीपी है तो तीनों की वैल्यू क्या होगी, 1/3 डीपी होगी। अब 1/3 होने का बाद एएफ एंड ईसी दो डायगोनल जो दोनों लाइनें हैं वो क्या हैं, ट्राइसेक्ट डायगोनल डीबी। इस डीबी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर एक पार्ट क्या है, इस डीबी का 1/3 है। तो दैट इज द सिंपल क्वेश्चंस, एंड if you know the region, if you know the conditions, easily you can prove it. Now come to the question number 6. So that the line segment joining the midpoints of the opposite side of a quadrilateral bisect is. इस क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, लोग सोचते हैं कौन सी फिगर है, क्या करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, एक आप क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए, पी क्यू आर ABCD है, PQRS मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइन करिए और एक डायगोनल ज्वाइन कर दीजिए। पहले AC डायगोनल से हम बात कर रहे हैं, तो इसके जो कंडीशन है सेम वही आ रही। ABC में क्या होगा, PQ पैरेलल टू AC, PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, SR पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो PQRS क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। जब पैरेललोग्राम हो गया तो इसके कह रहा है कि so that the line segment joining the midpoints of the opposite sides। अब ये ABCD क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स R और P, ये अपोजिट साइड के R और P मिड पॉइंट्स हो गए। S और Q क्या हो गया, इस BC और AD साइड का मिड पॉइंट हो गया। तो कह रहा बाइसेक्ट इधर, तो जब आप इसको ज्वाइन करें तो क्या बना, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो आरपी और एसक्यू क्या हो गया, डायगोनल हो गया। PQRS आपने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इस प्रॉपर्टी को आप अप्लाई करिए, यू गेट द रिजल्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 देखिए, है यहां भी कुछ नहीं, लेकिन आपको इसमें क्या करना पड़ेगा। यहां देखिए 7th क्वेश्चन जो दिख रहा है उसमें आपको कह रहा है ABC इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट C। ABC आपका एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल C पर है, ठीक है। और M क्या है, इस हाइपोटेनस AB का मिड पॉइंट है। तो अगर M इस हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है तो कह रहा है कि a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC। मान लीजिए MD एक लाइन हमने ड्रा किया जो BC के पैरेलल है, और यहां से इंटरसेक्ट AC को कहां पर कर रहा है, D पर कर रहा है। अब शो करना है कि ये D जो है इस AC का मिड पॉइंट होगा और MD इस पर परपेंडिकुलर होगा।
और CM इज इक्वल टू M इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB हो जाएगा। तो यहां देखिए सबसे पहली कंडीशन, इस ट्रायंगल ABC में AB साइड का मिड पॉइंट क्या है? M। यहां से एक लाइन ड्रा की जाती जो इसके दूसरी साइड के पैरेलल है। MD इज पैरेलल टू BC। तो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इट बाइसेक्ट द AC एट D। ठीक है, यहां देखिए हमने क्या लिखा है, ABC है, MD पैरेलल टू BC, ADM इज इक्वल टू ACB। ADM और ACB ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, तो ये दोनों भी 90 डिग्री हो गया। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, MD पैरेलल टू BC, देयरफॉर MD बाइसेक्ट AC एट D, देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। बाई, इसके आगे लिख लीजिए, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब ये कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से हो गया, तो पहला पार्ट प्रूव हो गया, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। क्योंकि ऑलरेडी हमने ADM इज इक्वल टू ACB हमने प्रूव कर दिया 90 डिग्री, तो MD परपेंडिकुलर ऑन AC, सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। अब हम क्या करें, तीसरे पार्ट को प्रूव करने के लिए हमें यहां पर CM को ज्वाइन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। तो हमने CM को ज्वाइन कर लिया। अब देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है ADM और CDM। अब MD परपेंडिकुलर है AC पर, तो ADM और CDM दोनों 90 हो गए। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, AD इज इक्वल टू DC, ये हो जाएगा। और DM दोनों में कॉमन है, तो ये साइड कॉमन हो गई, तो क्या बना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो दोनों कॉन्वेंट हो गए। अब कॉन्वेंट होंगे तो क्या आएगा, AM इज इक्वल टू CM, और AM क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो यहां से जो पार्ट आ रहा है ये AM इज इक्वल टू CM, इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM, ADM इज इक्वल टू CDM इज इक्वल टू 90 डिग्री, AD इज इक्वल टू DC, DM इज इक्वल टू DM कॉमन हो गया, तो दोनों कॉन्वेंट हो गए साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी से। AM इज इक्वल टू CM के आ गया, और चूंकि M मिड पॉइंट है AB का, तो इससे AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो दोनों से क्या है, AM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये आपका सारा का सारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब इसमें देखिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो है, जो होम असाइनमेंट मैंने आपको दिया है, उसमें एग्जाम्पल्स 4, 5, 7, 8 ये आपको सॉल्व करना है। जितनी भी थ्योरम है उनके स्टेटमेंट आपको लिखने हैं। कुछ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे आप RD शर्मा से, चाहे आप किसी बुक से, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर बेस्ड करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का मतलब क्या, आप इसके सारी चीजें याद कर लेंगे। राइट द एक्टिविटी, अब आप मिड पॉइंट थ्योरम पर जो थ्योरम है उससे एक्टिविटी आप बना लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? यस सर। सभी लोग कर लेंगे इसको? ठीक है, तो इतना आप कर लीजिए। और ये जो पार्ट है इसके बाद आप आगे करेंगे, अगला चैप्टर फिर हम कराएंगे। अभी अब आपका हम सोच रहे हैं टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद अगला टेस्ट कराएंगे। अगले टर्न पे हो सकता है टेस्ट होगा आपका, चैप्टर टेस्ट। फिर आपका चूंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल ये नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है, तो सीधे सर्कल्स पढ़ाया जाएगा। तो सर्कल्स आपका 10 चैप्टर हो जाएगा, बाकी जो चैप्टर्स हैं वो उसमें रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।